نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو کرانک بیسک گرامر کورس بائی نور ہدایت بیچ 2. آج آپ سب کو خوش آمدید ہے لیکچر نمبر 28 میں. ہمارا ٹاپک ہے جملہ اسمیہ کو نفی بنانا، نیگیشن ان نومینل سینٹینس. جب آپ لوگ گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اردو میں جملے بناتے ہیں، تو وہ جملے کس قسم کے ہوتے ہیں؟ وہ آلموسٹ 3 طرح کے ہو سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا کیٹیگرائز کریں، جس میں مثبت جملے، سوالیہ انٹروگیٹو سینٹینسز، ٹھیک ہے، اور نیگیٹو جملے، ٹھیک ہے، منفی جملے جنہیں کہا جائے، یعنی مثبت، منفی اور سوالیہ جملے. 3 طرح سے بات کی جاتی ہے نا. ایک جنرل اگر ہم بات کرتے ہیں، اب مثبت یا پازیٹیو سینٹینس کیا ہوگا؟ زید نیک ہے، فاطمہ عبادت گزار ہے، خالد سچا ہے، عائشہ نیک ہے. یہ سب پازیٹیو سینٹینس ہیں، مثبت، جن میں ایک مثبت بات بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. سوالیہ جملے انٹروگیٹو سینٹینسز وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ان میں طلب موجود ہوتی ہے، سوال کیا جاتا ہے. استفہام کا مطلب ہے نا طلب. اس میں سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کسی سے. جیسے میں پوچھوں کہ کیا خالد آج اسکول آیا تھا، یا کیا نعیمہ جی آج کلاس میں موجود ہیں، کیا عائشہ نے روزہ رکھا ہے. ڈفرینٹ سوال ہو سکتے ہیں. استاد کہاں ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے. اسی طرح نگیشن ہوتی ہے، منفی جملے ہوتے ہیں جن میں نہیں کا جو ایک امپیکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. جیسے زید نیک نہیں ہے، فاطمہ کھانا نہیں کھاتی ہے، خالد نے کتاب نہیں پڑھی. ڈفرینٹ نیگیشن میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. منفی بات ہے نا، بہت طرح سے کی جا سکتی، بہت سارے جملے بنا سکتی ہیں آپ. یہ تو میں نے آپ کو اردو کی اگزامپل دی. آج ہم اپنے جملہ اسمیہ میں دیکھیں گے کہ نیگیشن کیسے کی جاتی ہے، ایک جملہ اسمیہ کو کیسے منفی بنایا جاتا ہے، کوئی حرف لے کر آیا جاتا ہے، وہ کون سا حرف ہوتا ہے، اور اس کے آنے سے کیا کوئی گرامیٹیکل چینج آتا ہے جملے میں یا نہیں آتا، اور اس کو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہاں نیگیشن ہو رہی ہے جملہ اسمیہ میں، یہاں پر ہمیں منفی کا مفہوم مل رہا ہے. انہی حروف کی مدد سے، ان کی پہچان سے، ان کو یاد کر کے، ان کی ٹرانسلیشن کرنا سیکھ کے ہم قرآن مجید کی آیات میں دیکھیں گے، ہم ان کی پہچان کریں گے، پھر ہم ان کو دیکھیں گے کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے. رائٹ. تو لیٹ اسٹارٹ آور لیکچر نمبر 28، جملہ اسمیہ کو نفی بنانا. جملہ اسمیہ کو نفی بنانے کے لیے کچھ حروف ہیں، ان کو دیکھیے گا. ما، ان، لا، لیسا، لاتا. یہ حروف ہیں جو جملہ اسمیہ سے پہلے آتے ہیں اور اس میں نیگیشن لے کر آتے ہیں، اس میں منفی مفہوم لے کر آتے ہیں. آج ہم کون کون سے حروف پڑھیں گے؟ آج ہم پڑھیں گے ما اور ان. لا کو ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ کور کریں گے. لیسا، اس کو ہم فعل کے ساتھ پڑھیں گے. جب ہم جملہ فعلیہ کی اسٹڈی اسٹارٹ کریں گے وہاں میں آپ کو لیسا پڑھاؤں گی. اور لاتا، یہ قرآن مجید میں ایک بار ہی آیا ہے، اس کو میں آج ہی آپ کو ایکسپلین کر دوں گی ایگزامپل کے ساتھ انشاءاللہ. تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر. زید صالح، کیا ہے یہ؟ یہ مثبت جملہ ہے، پازیٹیو سینٹینس ہے. زید مبتدا، صالح خبر. ٹرانسلیشن، زید نیک ہے. اب
मुझे इसमें निगेशन लेकर आनी है और मैंने आपसे कहा कि हर्फ़ु हर्फ़े नाफ़िया माँ, इसको आप माँ नाफ़िया भी कह सकती हैं, ठीक है? माँ जुमला इस्मिया में नेगेशन लेकर आएगा। तो अब इस जुमला इस्मिया से पहले मैं माँ लगाऊँगी और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से चेंजेज़ आते हैं। ये माँ क्या जुमला इस्मिया से पहले आकर उस जुमला इस्मिया में कोई ग्रामेटिकल चेंज लेकर आता है और इसके आने से नेगेशन के अलावा क्या होगा हम इसको सीखते हैं इंशाल्लाह। माँ ज़ैदुन सालिहन, मैंने जुमला इस्मिया से पहले माँ लगा दिया है, ठीक है? अब आप देखें कि हमारा जो मुब्तदा था ज़ैदुन, वो एज़ इट इज़ मरफ़ू नज़र आ रहा है आपको। लेकिन आपके सामने जो खबर सालिहुन मस्बत जुमले में मरफ़ू थी, अब वो मंसूब हो गई है। अच्छा, अब मंसूब आपने कैसे पहचाना कि ये जो आपको 2 ज़बर की तनवीन मिल रही है ना इससे, ठीक है? फ़तहतैन से आपने पहचाना कि आपकी जो खबर है वो अब यहाँ पर मर मंसूब हो गई है। अब हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला? हमने यहाँ देखा कि माँ ने जुमला इस्मिया में आकर खबर को मंसूब कर दिया है, राइट? अब क्या हुआ? ट्रांसलेशन कैसे करेंगे उसको समझेंगे। माँ क्या है? ये हमारा माँ नाफिया हो गया, ठीक है? ज़ैदुन इस्मु माँ और सालिहुन खबरु माँ। अब ये क्या हुआ कि मैंने तो आपको बताया कि ज़ैदुन मुब्तदा और सालिहुन खबर है। इधर आकर इसके नाम चेंज हो गए। इसलिए कि जब माँ आया जुमला इस्मिया में, तो उसने कहा कि अब मैं लीडर हूँ, ठीक है? मेरा ऑर्डर चलेगा, तो मेरा ऑर्डर ये है कि जो मुब्तदा और खबर थे, अब वो मेरे नाम के साथ पहचाने जाएँगे। तो जो मुब्तदा था, उसको इस्म माँ का नाम दिया गया और सालिहन खबरू माँ हो गया, राइट? तो माँ ने 2 क्या काम किए आके यहाँ से देखिए। एक सबसे पहले उसने खबर को मंसूब कर दिया। सेकंड उसने अपनी कमांड ज़ाहिर की कि अब मुब्तदा और खबर नहीं रहेंगे, ये मुब्तदा इस्मु माँ कहलाएगा और खबर खबरू माँ कहलाएगी। ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? माँ की ट्रांसलेशन सिंपल नहीं के साथ की जाएगी। ज़ैद नेक नहीं है, ठीक? ये है माँ का। अब माँ के पॉइंट्स देखिएगा। माँ जुमला इस्मिया में आकर नफ़ी का मफ़हूम पैदा करता है। माँ मुब्तदा को अपना इस्म बना लेता है और वो इस्मु माँ कहलाता है और माँ खबर को अपनी खबर बना लेता है और वो खबरू माँ कहलाती है। यानी इस्मु माँ मरफू और खबरू माँ मंसूब। अब हमें इस चीज़ को याद रखना है कि माँ ने आकर क्या-क्या किया। माँ ने आकर सबसे पहले नफ़ी का मफ़हूम पैदा किया, नेगेशन लेकर आया जुमला इस्मिया में, राइट? फिर उसने अपनी जो है ज़ाहिर किया कि जी मैं लीडर हूँ तो मेरी बात मानी जाएगी। उसने मुब्तदा को अपना इस्म और खबर को अपनी खबर बना लिया। अब हमें ये जो ग्रामेटिकल चेंज हुआ इसको याद रखना है कि इस्मु माँ मरफ़ू होगा और खबरु माँ मंसूब होगी। थोड़ा-सा अगर आप ज़हन को अपने लेक्चर को पिछले लेक्चर को इन्ना वाले लेक्चर को रिवाइज़ करती हैं, तो देखिए वहाँ पर क्या था, वहाँ पर ऑपोज़िट था। ठीक है? कि इन्ना ने आकर जब जुमला इस्मिया पर अपनी लीडरशिप शो की, तो उसने मुब्तदा को मंसूब किया था, खबर मरफ़ू ही रही थी। लेकिन माँ ने उससे अपोज़िट काम किया आके, ठीक है? इन्ना ताकीद भी लेकर आया था, लेकिन माँ ने आके क्या किया, इसने एक तो जुमले में नेगेशन लेकर आया, देन ये इसने मुब्तदा को अपना इस्म और खबर को अपनी खबर बना लिया। साथ ही इसने क्या किया कि जो इस्मु माँ है वो मरफ़ू रहेगा और ख़बरू माँ मंसूब हो जाएगी, बस ये इसका काम है। माँ के इफ़ेक्ट्स को आपने याद रखना है, ये इन्ना के ऑपोज़िट है। याद रखने की एक टिप है, आपको वैसे ही याद हो जाता है वेल एंड गुड, लेकिन कभी-कभी आप कन्फ्यूज़ हो सकती हैं कि माँ किसको मंसूब कर रहा है, ये मुब्तदा को कर रहा है या ख़बर को? तो उसकी टिप यही है कि आप इसको इन्ना के ऑपोज़िट याद रखें। उर्दू में आप लोगों ने पढ़े हुए हैं ना? अल्फ़ाज़ और मुताज़ात और इंग्लिश में जैसे वर्ड ऑपोज़िट्स होते हैं, तो इसी तरह इसको याद कर लीजिए कि माँ जो है इन्ना की ऑपोज़िट आता है।
आगे देखें, हुआ सालिहुन, हुआ मुब्तदा, इस्म ज़मीर, ठीक है? इस्म ज़मीर है, ठीक है? और ये ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल है। सालिहुन इसकी खबर है। तो ट्रांसलेशन क्या है? वो नेक है। अब मुझे इसमें नेगेशन लानी है माँ के साथ, तो मैं क्या करूँगी? माँ हुआ सालिहन, माँ ने आकर खबर को मंसूब कर दिया है। और अब जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हम इसकी ट्रांसलेशन नेगेशन के साथ, मनफी के साथ करेंगे, ठीक है? माँ नाफिया है, हुआ इस्मु माँ, सालिहन खबरू माँ। ट्रांसलेशन वो नेक नहीं है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, हुमा सालिहानी। अब इस एग्जाम्पल में देखें, हुमा ज़मीर मरफू मुनफसिल मुसन्ना के लिए आई है, ठीक है, रूअल के लिए। सालिहानी खबर है, हुमा मुब्तदा, सालिहानी खबर। यहाँ देखें, आपके जो मुब्तदा और खबर के रूल्स हैं ना, उनको भी साथ साथ रिवाइज कर दीजिए कि सालिहानी मुसन्ना है, डुअल है, तो जो खबर है अपने मुब्तदा को जीन्स और अदद में फॉलो करती है, जेंडर और नंबर में। तो यहाँ भी देखिए उसने उसको फॉलो किया। जैसे ही हमारा मुब्तदा डुअल में गया है, खबर भी डुअल में चली गई। मुब्तदा हमारा मुज़क्कर था, खबर भी मुज़क्कर है। ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस है, वो दोनों नेक हैं। जुमला इसमें की ट्रांसलेशन हमेशा ऐसे करनी है कि पहले आप मुब्तदा को जिक्र करेंगी, देन आप खबर का ट्रांसलेट करेंगी, ठीक? अब हम इसमें निगेशन लाएंगे माँ के साथ, तो कैसे हो जाएगा? माँ हुमा सालिहैनी, नोट कीजिए, सालिहानी था। आनी की साउंड हालत रफा की होती है क्योंकि खबर मरफू होती है। अब यहाँ पर माँ ने आकर खबर को मंसूब किया, तो आनी ऐनी ऐनी, राइट? माँ नाफिया है, हुमा इस्मुमा, सालिहैनी खबरुमा। और ऐनी के साउंड डुअल की होती है, मुसन्ना की। वो दोनों नेक नहीं हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा, हुम सालिहूना, हुम ज़मीर मरफू मुनफसिल, मुब्तदा है आपकी, ठीक है, डिटैच्ड प्रोनाउन। सालिहूना खबर है, जमा है क्योंकि हमारा मुब्तदा भी जमा है और मुज़क्कर है, खबर भी उसी को फॉलो कर रही है। ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? वो नेक हैं या वो सब नेक हैं। माँ आया, निगेशन लेकर आएगा, तो क्या करेगा फिर? माँ हुम सालिहीना। आप सालिहूना, ऊना की साउंड जमा सालिम मुज़क्कर की है, हालत रफ़ा की साउंड है उसकी। और जब नस्ब और जर में जाएगा तो कैसे होगा? ईना ईना, ऊना ईना ईना। इसने माँ ने आकर खबर को मंसूब कर दिया है, तो सालिहूना से सालिहीना हो गया। माँ नाफिया, हुम इस्मुमा, सालिहीना खबरुमा। वो नेक नहीं है या वो सब नेक नहीं है। देखिए, शायद आप कहती होंगी कि टीचर बार-बार इन साउंड्स को रिवाइज़ कराती है, तो इनको रिवाइज़ कराने का यही पर्पज़ है कि आपको ये साउंड्स आपके ज़हन में बैठ जाएँ, ठीक है? आनी, ऐनी, ऐनी, ये डुअल की साउंड है। आनी रफ़ा, ऐनी नस्ब और जर। ऊना, ईना, ईना, ऊना हालत रफ़ा, जमा की साउंड मैं बता रही हूँ, ठीक है? ईना नस्ब और जर है। आगे देखिएगा, हिया मुज्तहिदतुन। हिया डिटैच्ड प्रोनाउन, मुअन्नस के लिए, वाहिद मुअन्नस के लिए। मुज्तहिदतुन ये किराए से इसकी खबर हो जाएगा। हिया मुब्तदा, मुज्तहिदतुन खबर। ट्रांसलेशन क्या होगी? वो मेहनती है या वो औरत मेहनती है। हिया से हमें अंडरस्टूड है कि यहाँ फीमेल की बात हो रही है, तो मैंने फिर भी आपके लिए मेंशन कर दिया है। आप निगेशन लाएंगे माँ के जरिए, तो माँ आया, क्या किया उसने? माँ हिया मुज्तहिदतन, माँ ने आकर खबर को मंसूब कर दिया और अपना ऑर्डर इम्प्लीमेंट किया कि भाई माँ नाफिया हो गया, जो हिया था मुब्तदा वो हो गया इस्मुमा, और मुज्तहिदतुन खबर खबरुमा हो गई। ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? वो मेहनती नहीं है। सेकंड एग्जांपल को देखते हैं, हुमा मुज्तहिदतानी। अब यही
जो सेंटेंस था हमारा सिंगुलर का वो डुअल में आ गया। हुमा डिटैच्ड प्रोनाउन मुसन्ना के लिए मुजतहिदतानी जो है इसकी खबर हो जाएगी, हुमा मुब्तदा मुजतहिदतानी खबर। वो दो मेहनती हैं या वो दोनों मेहनती हैं, ये होगी पॉजिटिव बात। अब इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे लाएंगे? माँ के जरिए। तो याद रखना है कि जुमला इस्मिया में निगेशन या नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो माँ लेकर आएगा। माँ आएगा, खबर को मंसूब करेगा, निगेशन लेकर आएगा और फिर अपना ऑर्डर लेकर आएगा कि मुब्तदा इस्मु माँ और खबर खबरू माँ कहलाएगी। सिंपल, बस। तो माँ नाफिया हुमा इस्मुमा मुज्तहिदतैनी खबरूमा, वो दोनों मेहनती नहीं हैं या वह दो औरतें मेहनती नहीं हैं। आप ट्रांसलेशन को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। हुन्ना मुज्तहिदातुन, अब जो बात है ना वो वाहिद से निकली, डुअल में गई, डुअल से अब प्लूरल में आ गई है। तो हुन्ना जमा मोन्नस के लिए आता है, ठीक है, डिटैच्ड प्रोनाउन है, ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल जिसे कहते हैं। मुज्तहिदातुन ये इसकी खबर है, क्योंकि मुब्तदा आपका जो हुन्ना है ये जमा में चला गया, तो खबर भी ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करते हुए जमा के नंबर में चली गई है। तो हुन्ना मुब्तदा मुज्तहिदातुन खबर। ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? वो सब औरतें मेहनती हैं या वो सब मेहनती हैं। अब ये जो है और है का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमें जुमले में इस्म जो है इस्म मार्फा और नकरा देता है, ठीक है? इनके लिए कोई प्रॉपर वर्ड्स नहीं है, हर्फ नहीं है अरबिक ग्रामर में। अब इसी जुमले में नेगेशन लाएँगे मा नाफिया के ज़रिए, तो मा हुन्ना मुज्तहिदातिन, मुज्तहिदातुन, आतुन की साउंड जमा मुअन्नस सालिम की रफ़ा की है और आतिन नस्ब और जर के लिए है, ठीक है? तो यहाँ मुस्तहिदातिन हमारा मंसूब माँ नाफिया के आने से। माँ नाफिया है, हुन्ना इस्मु माँ हो गया, मुस्तहिदातिन खबरू माँ होगी। ट्रांसलेशन कैसे करेंगी आप? वो सब औरतें मेहनती नहीं हैं या वो सब मेहनती नहीं हैं। तो ये है जुमला इस्मिया में निगेशन लाना। जुमला इस्मिया में जो है उसको किस तरह से मंफी इम्पैक्ट लेकर आते हैं, हम माँ के ज़रिए लेकर आते हैं। माँ ने क्या-क्या किया? माँ ने उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आया, माँ ने खबर को मंसूब किया और उसने अपना ऑर्डर दिया कि मुब्तदा इस्मु माँ और खबर खबरू माँ। अब देखिए माँ की एक और एग्ज़ाम्पल, ज़ैदुन सालिहुन, ठीक है? ज़ैदुन क्या मुब्तदा, सालिहुन इसकी खबर हो गई। ज़ैद नेक है। अब मैंने यहाँ क्या करना है? मा ज़ैदुन बिसालिहिन, क्या चेंज नज़र आ रहा है आपको इसमें? मैं नेगेशन तो लेके आई हूँ माँ के साथ, लेकिन अब यहाँ आपको खबर के साथ एक बा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बा हर्फ़े जर। अब इस जुमले में एक आपको नया हर्फ नज़र आ रहा है, ठीक है? खबर के साथ। मा ज़ैदुन बिसालिहिन, अब खबर के साथ हमें बा हर्फ़े जर नज़र आ रहा है। अब यहाँ आपको याद रखना है कि माँ के बाद जब खबर पर आपको बा हर्फ़े जर मिल जाए, तो वो एक ताकीदी नफ़ी लेकर आता है, ज़ोरदार नफ़ी लेकर आता है, यानी उस नफ़ी में एक स्ट्रेस आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ये बा जो है, इस बा को ज़ायदा कहेंगे, ये बा ज़ायदा है, ये आकर एक काम करता है कि जो माँ का मंसूब करने वाला इफ़ेक्ट है ना, ये उसको ख़त्म कर देगा बस, ठीक है? अब माँ नाफ़िया है, ज़ैदुन इस्मु माँ, बिसालिहिन खबरू माँ। इस बा ज़ायदा ने आकर खबर को मंसूब से मजरूर कर दिया। सिर्फ यही करेगा और इसके साथ-साथ जो हमने माँ के ज़रिए नेगेशन जुमले में लाई थी, जो मनफ़ी मफ़हूम लेकर आए थे, इसने उसमें मज़ीद ताकीद कर दी, मज़ीद स्ट्रेस ले आया। अब इस बा के साथ हम माँ प्लस बा ज़ायदा कॉम्बिनेशन की
ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, उस जोरदार नफी की जो हमने ट्रांसलेशन लेकर आनी है इस जुमले में, एक निगेशन, जोरदार निगेशन का जो इम्पैक्ट लेकर आना है, वो कैसे करेंगे? देखिए, जैद हरगिज नेक नहीं है। पहले मैंने क्या कहा था? मा ज़ैदुन सालिहन, जैद नेक नहीं है। सिंपल मैंने कहा जैद नेक नहीं है। लेकिन जब खबरू मा पर बा ज़ायदा आ गया, तो उस निगेशन में एक स्ट्रेस आ गया, राइट? तो वो क्या स्ट्रेस आया कि वो ट्रांसलेशन में देखिए हरगिज़ से आपको नज़र आ रहा है। अब वो एक ताकीदी ज़ोरदार नफ़ी हो गई है कि उस बात की मुकम्मल नफ़ी, मतलब मुकम्मल नहीं मैं कह सकती, हम कह सकते हैं कि उस बात की नफ़ी जो है उसमें स्ट्रेस आ गया कि ज़ैद हरगिज़ नेक नहीं है। माँ की खबर पर हरफ़े जर बा दाखिल करने से खबर हालत जर में चली जाती है और जुमले में ज़ोरदार नफ़ी का मफ़हूम पैदा हो जाता है। ये बा बाज़ायदा कहलाता है। इस बा को आप बाज़ायदा कहेंगी। सिंपल ये क्या करेगा? 2 काम करेगा। सबसे पहले जो माँ की खबर मंसूब थी उसको मजरूर कर देगा और फिर ये क्या करेगा? ज़ोरदार नफ़ी का मफ़हूम लेकर आएगा। एक स्ट्रेस वाली नेगेशन उसके साथ ले आएगा। आगे देखते हैं, मा हुआ बिसालिहिन। मा नाफिया है, हुआ इस्मु मा और सालिहिन खबरू मा। वो हरगिज नेक नहीं है। मा हुमा बिसालिहीनी, अब डुअल में चला गया वही सेंटेंस, राइट? मा नाफिया है, हुमा डिटैच्ड प्रोनाउन, इस्मु मा यानी ज़मीर मरफूउन मुनफसिल और बिसालिहीनी खबरू मा। बा हरफ जर के आने से अब यहाँ ये सॉलिहीनी, इसका एराब क्या हो जाएगा? इसका एराब मजरूर हो जाएगा, हालत जर में चला जाएगा। वो दोनों हरगिज नेक नहीं है। ट्रांसलेशन पे गौर करती जाइएगा, आप देखिए कैसे चेंज हुई कि माँ के साथ सिंपल निगेशन, सिंपल नफी थी, लेकिन अब यहाँ पर हमारे सामने देखिए कि जब माँ प्लस बा हरफ जर, बा ज़्यादा का कॉम्बिनेशन आया, तो जो हमारी ट्रांसलेशन है उसमें एक स्ट्रेस आ गया, जोरदार नफी। माँ हुम बिसॉलिहीना, मा नाफिया, हुम डिटैच प्रोनाउन, ज़मीर मरफू मुनफसिल, इस्मु मा बिसॉलिहीना खबरू मा। बा ज़ायदा है, सॉलिहीना हमारी जो है वो खबरू मा हालत जर में है बा ज़ायदा की वजह से। वो सब हरगिज नेक नहीं है। कंक्लूजन क्या निकला? बा हरफ जर मा नाफिया के साथ आकर ताकीदी मफहूम देता है और खबर को मजरूर कर देता है। ताकीदी मफहूम नेगेटिव में, निगेशन में, मनफी में। तो मा प्लस बा ये ताकीदी नफी कहलाएगी। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आसानी रहेगी इंशाअल्लाह। हामिदुन मुदर्रिसुन, हामिदुन मुब्तदा, मुदर्रिसुन इसकी खबर है। अब मैं इसको, इसमें निगेशन लेकर आती हूँ, ठीक है? तो ट्रांसलेशन पहले हम देखेंगे। हामिद एक मुदर्रिस है। मैंने माँ के ज़रिए इसमें निगेशन लेकर आई तो क्या आई कि इसने, माँ ने आकर खबर को मंसूब कर दिया। देखिए, माँ हामिदुन मुदर्रिसन, माँ नाफिया, हामिदुन इस्मु माँ और मुदर्रिसन खबरू माँ। हामिद हरगिज, सॉरी, हामिद एक मुदर्रिस नहीं, ठीक? हाँ, यहाँ पर हामिद एक मुदर्रिस नहीं है। ये हरगिज वाली जो है ना, इसको आप लोग कट कर लीजिएगा। सिंपल जो नेगेशन है ना माँ के जरिए, वही होगी यहाँ पर, ठीक है? शायद कॉपी पेस्ट करने से प्रॉब्लम है। अच्छा, आगे देखिएगा। अब हम इसके साथ, माँ के साथ जो है, देखिए क्या आ गया जुमले में, माँ हामिदुन इल्ला मुदर्रिसुन। जुमले में आपको एक नया हर्फ नजर आ रहा है, इल्ला। इल्ला को हरफे इस्तिस्ना भी कहते हैं, ठीक है? अब इस्तिस्ना क्या होती है? यानी एक्सेप्शन। तो इस्तिस्ना की जो डेफिनेशन है उसको समझ लें कि इस्तिस्ना के मानी है कई चीजों में से एक चीज को अलग कर देना, सेपरेट कर देना, ठीक है?
अब इसकी जो डिटेल है वो आगे आप लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि माँ और इल्ला का जो कॉम्बिनेशन आता है ना, ये भी ये आपको माँ और इल्ला का कॉम्बिनेशन भी कुरान मजीद में मिलेगा निगेशन के लिए, ठीक है। माँ नाफिया है और इल्ला हरफ इस्तिस्ना है। हामिदुन मुब्तदा, मुदर्रिसुन खबर। अब देखिए, इल्ला ने आकर माँ के जो दोनों असरात थे ना, वो खत्म किए। सबसे पहले कि खबर को मंसूब करने वाला इम्पैक्ट खत्म किया, फिर उसने आकर वो जो मुब्तदा और खबर को उसने अपनी इसम और खबर बनाया था ना, उसने उसको भी खत्म किया है माना किया ने। अब ट्रांसलेशन इसकी कैसे होगी? इल्ला की ट्रांसलेशन जो है कैसे करेंगे देखिएगा। हामिद नहीं है सिवाय इसके कि एक मुदर्रिस। यानी अब कहा जा रहा है कि हामिद सिवाय एक मुदर्रिस के कुछ नहीं है, उसका काम पढ़ाना है बस। तो लिखिएगा, अगर माँ के इसम और खबर में हरफ इस्तिस्ना इल्ला दाखिल हो जाए तो माँ नाफिया का असर खत्म हो जाता है। इस अमल से जुमला मनफी नहीं होता, बल्कि इसमें एक ताकीद पैदा हो जाती है। अब इल्ला के आने से जो इस माँ और इल्ला के कॉम्बिनेशन से जो ये एक निगेशन आ रही है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिविटी है, ठीक है, पॉजिटिव है ये। किस तरह देखिए, मैंने ट्रांसलेशन को गौर कीजिएगा। हामिद नहीं है सिवाय इसके कि एक मुदर्रिस। तो ये जो माँ प्लस इल्ला, ये पॉजिटिव ताकीदी नफी लेकर आता है, ठीक है। अब यहाँ सिर्फ बताया जा रहा है कि हामिद सिर्फ जो है ना एक मुदर्रिस है, हामिद एक मुदर्रिस के सिवा कुछ नहीं है। इस तरह से भी आप इसको ले सकते हैं। इंशाल्लाह ये चीज़ें आप ना आहिस्ता-आहिस्ता ऑब्ज़र्व करती जाएँगी, घबराने की कोई बात नहीं है कि अगर आप कहें कि ये किस तरह से, जब हम लोग आगे मदीना में आप लोग इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों की, कुरान मजीद की आयत से भी इंशाल्लाह, जब आप जुमला फ़ेलिया भी पढ़ लेंगी, तो फिर जब आप एनालिसिस किया करेंगी तो फिर इंशाल्लाह आपको इसको समझने में मज़ीद आसानी। दूसरा हर्फ है इन। इन भी जुमला इस्मिया से पहले आकर उसमें नेगेशन लेकर आता है, उसमें मनफी मफ़हूम लेकर आता है। हामिदुन आलिमुन, हामिदुन मुब्तदा, आलिमुन खबर। हामिद एक आलिम है। अब हम इसके साथ इन लगाएंगे और देखेंगे कैसे चेंज होता है। इन हामिदुन आलिमन। अब देखिए, इन आ गया और इन ने क्या किया, इन ने भी खबर को मंसूब कर दिया है यहाँ पर, ठीक। तो देखिएगा इसको कैसे करते हैं। इन नाफिया है और हामिदुन इस्मो इन और आलिमन खबरू इन कहलाएगा, ठीक। अब इसको आगे समझिए, ट्रांसलेशन देखिए हम कैसे करेंगे इनके साथ। हामिद एक आलिम नहीं है। अब यहाँ हमने कह दिया हामिद एक आलिम नहीं है। इन हामिदुन इल्ला आलिमुन। अब इधर भी इल्ला आ गया, ठीक है। तो इल्ला क्या है? हरफ इस्तिस्ना है। इन नाफिया, हामिदुन मुब्तदा और इल्ला हरफ इस्तिस्ना है और आलिमुन खबर होगी। अब यहाँ फिर वो वापस अपनी पोजीशन पर आ गए हैं, मुब्तदा और खबर की, राइट। तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया इल्ला की ट्रांसलेशन हमने करनी है सिवाय के साथ, क्योंकि ये कुछ चीजों में से एक चीज को अलग करेगा, ठीक है, एक्सेप्शन लेकर आता है उसमें। तो ट्रांसलेशन को देखिए। नहीं है हामिद सिवाय एक आलिम के। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि हामिद सिवाय एक आलिम के और कुछ नहीं है, ठीक। इन नफी हमेशा इल्ला के साथ आता है, ये ताकीदी नफी है। इन और प्लस इल्ला की जो आ, नफी आती है, वो जो नेगेशन आती है, वो ताकीदी नफी होती है। ज्यादातर इसके बाद जुमले में हरफ इस्तिस्ना इल्ला आता है। आपको जुमला इसमिया में जब इनके साथ नेगेशन मिलेगी तो उसमें आपको इल्ला जरूर मिलेगा। इसका तर्जुमा अमूमन नहीं है, या हो से किया जाता है, ठीक। तो ट्रांसलेशन भी आपको पता चल गई कैसे करनी है।
अब एक और चीज़ देखिए यहाँ पर कि इन की पहचान क्या है? इन अभी आप अभी और एक दफ़ा इसकी मतलब इन और भी तरह से आप देखेंगे, ठीक है, इनका इस्तेमाल। तो ये इन इन नाफ़िया है, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? आपको इन नाफ़िया के बाद इल्ला ज़रूर मिलेगा। एक इन शर्तिया होता है, ठीक है? तो इन दोनों की पहचान अलग-अलग है। काम अलग-अलग है, लेकिन इन नाफ़िया जब आएगा तो उस जुमले में या उस आयत में आपको उसके बाद इल्ला ज़रूर मिलेगा। तो उससे आपकी पहचान हो जाएगी कि ये इन नाफ़िया है। जैसे हमने कहा ना कि माँ के बाद हमें अक्सर ज़्यादातर बा हर्फ़ जर मिलेगा। तो वहाँ पर फिर क्या हुआ कि आपको जो है वहाँ पर उसकी पहचान हमें बा हर्फ़ जर से करनी माँ की और इन की पहचान हमें इन के बाद इल्ला ज़रूर मिलेगा। हाज़ा सिह्रुन हाज़ा मुब्तदा, सिह्रुन खबर है। ये एक जादू है। इन आ जाएगा। इन हाज़ा सिह्रन। इन नाफिया हाज़ा इस्मु इन और सिह्रन खबरुन। ये एक जादू नहीं है। इन हाज़ा इल्ला सिह्रुन। इन नाफिया हाज़ा मुब्तदा इल्ला सिह्रुन। इल्ला सॉरी हर्फ इस्तिस्ना और सिह्रुन इसकी जो है हमारी मुब्तदा की खबर हो जाएगी। अब इन और इला की ट्रांसलेशन देखिएगा, नहीं ये मगर एक जादू, ठीक है? या नहीं है ये मगर एक जादू, ताकीदी नफ़ी आ गई ना यहाँ पर, ठीक है? ये इसके पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इन प्लस इल्ला ये कॉम्बिनेशन आपको कुरान मजीद में मिलेगा। लैसा, लैसा को हम फ़ेल के साथ पढ़ेंगे। लाता, लाता हीना मनासिब इसकी एक एग्ज़ाम्पल है लाता हीना मुनासिब बच निकलने का वक़्त ना था। चलें जी प्रैक्टिस के लिए आ जाइए। जल्दी-जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। जी, ज़रीना जी आ जाइए। जी उस्ताद, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मुझे ये बताइए ज़रीना जी, माँ आकर जुमले में कैसी नेगेटिविटी लाता है, कैसी नेगेशन लेकर आता है? अ, ये जुमला इसमें को नफ़ी करता है हुँ, और बा बा के साथ आता है। जी, खबर को नफ़ी खबर में क्या चेंज लाता है? नसब में जाता है खबर। जी, ठीक है। और जब माँ बा के साथ आ जाए तो क्या होगा? अ, ताकीदी नफ़ी आ जाएगी, ठीक है? ताकीद जी उस्ताद, ताकीद हाँ, फिर माँ जब आ जाएगा तो मुब्तदा खबर का नाम चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अ, जी उस्ताद, मा नाफ़िया इस्मु मा हाँ, खबरु मा। खबरुमा राइट। अब देखिए आपके सामने जुमला आया है अल वलदु मुज्तहिदुन मुब्तदा खबर जी उस्ताद, बताएं। अल वलदु मुब्तदा मुस्तहिदुन खबर। ठीक हो गया। ट्रांसलेशन पढ़ें। लड़का लड़का मेहनती है। ठीक है, अब माँ लगाएं इस जुमले पर। जी उस्ताद, मा मा अल वल मा अल वलदु मुजतहिदन। मल वलदु मुज्तहिदन गुड। जी, जी। अब ट्रांसलेशन कैसे करेंगी? अ, लड़का मेहनती नहीं है। बिल्कुल, लड़का मेहनती नहीं है। ओके, आगे देखिएगा। माँ नाफ़ी आ गया, अल वलदु इस्मु माँ, मुज्तहिदन खबरु माँ। खबरों में जी सब। चल लड़का लड़का मेहनती मेहनती नहीं है। अब एक और कीजिए, हुम मुमिनूना है। जी सज़ा हम मुब्तदा मुमिनूना खबर। ठीक हो गया। ट्रांसलेशन क्या करेंगे? पढ़िए। वो मोमिन है। जी सर। माँ को लगाइए अब इसमें। जी सज़ा माँ माँ हम मोमिन मोमिनीना मोमिनैनी ऊना की साउंड। ऊना ईना हुँ, मोमिनीना हम हुँ, मोमिनीना सब। शाबाश।
ما هم मुमिनीना, मा ما नाफिया। या कीजिए। जी ustad हम ismu ma मोमिनीना खबरू ma शाबाश। ट्रांसलेशन कैसे करेंगी? वो मोमिन नहीं है। ठीक। अब मैं आपसे अगर कहूँ कि इस मा हम मुमिनीना में बा हरफ jar दाखिल करें, बा जायदा, तो कैसे बनाएंगे जुमला? जी ustaza ma hum bi मोमिनीना हम्म। ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? वो हम्म। वो हरगिज। ट्रांसलेशन हाँ वो मोमिन वो हरगिज मोमिन नहीं है। ठीक। अब आप मुझे बताएं, आपने भी मुमिनीना किया, तो मुमिनीना की राबी हालत क्या हो जाएगी बा जायदा आने से? नसबिश बा हरफ jar क्या करता है? नसब को और नो, हरफ jar जब किसी इसम से पहले आते हैं तो वो किसी इसम। हम्म। उसको जर में ले जाता है। हाँ जी, तो अब भी मुमिनीना ने क्या किया? जर में लेके गया हाँ, अब मुमिनीना का एराब आपसे कोई पूछे कि बिग मुमिनीना में जी ustaza मुमिनीना। हाँ। वो इस ये जर में है। जी जर में है, गुड, ये चीज याद रखनी है। चलिए कीजिए, अल बिनतानी सादिकतानी। अब आपका जुमला जी डुअल सर में चला गया, ठीक है, मुसन्ना में। तो अल बिनतानी क्या हुआ? मुब्तदा सादिकतानी खबर राइट। ट्रांसलेशन पढ़े। दोनों लड़कियां सच्ची हैं। राइट। अब माँ लगाएं और नफी कीजिए जरा इसकी। मल बिनतैनी मल बिनतानी सादिकतैनी शाबाश। चलें, पढ़िए अब। वो दोनों जी ustaza वो दोनों लड़कियां सच्ची नहीं हैं। हम्म। ठीक है। माँ मानाफिया, अल माँ बिनतानी। माफिया अल बिनतानी इसमु माँ सादिकतैनी खबरुमा हम्म। पढ़िए। दोनों लड़कियां सच्ची नहीं हैं। हाँ, आपने वो दोनों नहीं कहना, इशारा नहीं ना आ रहा। ठीक है जी ustaza तो हमने अपने जुमले को देखना है, फिर ट्रांसलेट करना है। ठीक वो के लिए जी तो ustaza होता तो इशारा आता, जी या ustaza जमीर आती, ठीक है, जैसे हमने हम के साथ की। बारकल्लाहु जी फीक, जी वेरी गुड जरीना जी, माशाल्लाह। आ जाइए तहजीब। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें जी, कीजिए तहजीब, दिए गए जुमला इसमें एक साथ माना क्या लगाना है, लगाइए। जी मिस। पढ़िए पहले। मुब्तदा खबर आइडेंटिफाई अच्छा करें। अच्छा, मुब्तदा जी खबर मिस। क्यों हम बार बार आइडेंटिफाई करते हैं? इसलिए कि जैसे अभी हमने कहा कि माँ ने आकर खबर को मंसूब करना है, राइट। जी तो मिस। हमें जब तक पता नहीं होगा कि मुब्तदा कौन सा और खबर कौन सी, तो हम किसको मंसूब करेंगे? तो इसलिए जी इसको बार बार आइडेंटिफाई किया जाता है। आप कुछ कह रही थी? नहीं नहीं मिस, मैं कुछ नहीं कह रही थी। चलिए कीजिए कंटिन्यू। जी। अच्छा, औलादू अल मुब्तदा है। औलाद। औलाद अल औलादू सॉलिहूना। हम्म। ठीक है, यानी लड़के नेक है। आदमी नेक है या लड़के नेक है। हाँ, अल औलादू क्या है आपका? मिस ये मुब्तदा है हम्म। और सॉलिहूना खबर है। ठीक है। अब जी मान एंटर करें। जी। मा दाखिल। मल औलादू हम्म। मल औलादू सॉलिहीना। गुड। जी। लड़के नेक नहीं है। हम्म। जी। मिस ये माइनफी है और उसके बाद ये इस्म मा हो जाएगा और खबर खबरू मा हो जाएगी। गुड। नेक्स्ट। जी जी। हुन्ना उम्माहातुम। हुन्ना मुब्तदा है और ये जमा में है, और उम्माहातुम यानी कि वो माए हैं। उम्महातुहुम। उम्माहातुहुम हम्म। वो माए हैं। ठीक है। वो उनकी माएँ हैं। उम्महातुहुम मुरक्कब तुम बन रहा है ना? जी जी मिस बन रहा है। वो उनकी माए हैं। हम्म। तो हुन्ना मुब्तदा है और उम्माहातुहुम हम्म। ख- हम्म। खबर है। मिस खबर होगी, ये जी खबर जी होगी। जी। देखें।
ٹھیک ہے مبتدا اضافی ہے نا تو مبتدا بھی بنتے ہیں اور خبر جی بھی بنتے ہیں اور حالت خبر بھی رفع بھی بنتا آ ہے رہا ہے. ٹھیک. جی مس جی. اچھا اب آگے یہ ہوگا ما ہوں. ما اما ہاں مس لے ایک جائیں نا, منٹ. نصب میں لے جائیں اب اس کو. اب دیکھیے یہاں آپ جو کنفیوز ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں. ہاں میں کیوں امہاتن, دیکھیے ہاں میں نے ابھی آپ کو بتایا جمع سالم مؤنث آتن کی ساؤنڈ کے ساتھ رفع, آتن کی ساؤنڈ کے ساتھ نصب جر جائے گی. آتین آتین کے ساتھ نصب اور جر. اب کیونکہ ہاں صحیح ہے. امہاتو یہاں اعراب ہلکا ہے, مضاف بن رہا ہے نا, تو سنگل حرکت ہے. اب آپ آتن تو جی جی اس کو امہاتو سے کیا کر دیں گی, زیر امہاتن امہاتی. دیکھیں امہات نہیں کریں گے نا, مضاف ہے اعراب ہلکا ہے. امہاتہم ہاں چلیں کریں, اب بنائیں. امہاتہم. ٹھیک ہوں. ہے ما ہن امہاتہم. آپ سمجھ آئی بات. اب آئی سمجھ میں. گڈ. ٹھیک چلیں ہے بتائیے. ٹھیک ہے وہ ان کی مائیں نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی وہ ان کی. امہاتہم امہاتہم اسم ما اور خبر ما یہ مرکب اضافی اور مائے نافیہ اور ہنہ مبتدا. ہننا اسم ماما مائی ڈیئر. سوری ہاں اسم ما. چلیں. یس یس یس. ٹھیک اب ہے کیونکہ ماں آ گیا نا, اب آگے کیجیے. جی مس جی. اچھا انتا مجنون. ہوں. انتا مجنون. ٹھیک ہے تم مجنون ہو. نہیں مجنون نہیں ہو. نہیں پھر ہاں دیوانے ہو اور اچھا دیوانے ہو. ہاں اس ٹھیک میں نا ٹھیک ہے مجنون ہی کہہ دینا آپ نے یہاں پہ, یا مجنون ہی کہہ دیں. ٹھیک ہے. تو اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک اس ہے کو انتا مجنون تم دیوانے ہو. ہوں. انتا مبتدا ہے مجنون خبر ہے. ہوں. ٹھیک ہے ما انتا ہوں. مجنونن. گڈ. آپ تم مجنون تم کریں. تم دیوانے نہیں ہو. ما حرف نفی, انتا اسم ما اور مجنونن خبر ما. تم دیوانے نہیں ہو. اچھا مجنون کی جو ایک اور ٹرانسلیشن کی جاتی ہے وہ مخبوط الحواس. ٹھیک ہے. اس طرح سے اچھا کرتے ٹھیک ہے ہیں دونوں طرح سے, یعنی ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیوانہ وہی نا جس کا ذہن کام نہیں کر رہا. رائٹ. تو بارک اللہ بالکل صحیح. فیکی, ماشاء اللہ. بھی تھینک یو آگے مس. قرآن کی آیات ہیں انشاءاللہ, اس میں بھی آپ لوگوں کو بلاتی ہوں. آگے آ جائیے فوزیہ جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فوزیہ جی آپ نے بھی وہاں نافیہ لگانا ہے تو پڑھیے. الطالبات حاضرات. ہوں. تو اس کے ساتھ اب ماں لگائیں گے تو پہلے مبتدا خبر بتا دیں نا. جی لیکن ہو الطالبات سکتا ہے کوئی مبتدا ہے. اسٹوڈینٹ لیٹ بھی جوائن کرتا ہے تو جی جی کو پتا چل جائے گا کہ کیا چینجز کس میں لے کر آنی ہے. ٹھیک ہے نا. جی چل. الطالبات مبتدا حاضرات خبر. تو جب اس کے ساتھ ہم ماں لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا مطالبات حاضرات. ابھی کیا بتایا. سوری آتن آتن آتن. سوری جی 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 حاضراتن. چلیں تو اب طالباتو جو ہے وہ ماں کا اسم ماں ہو جائے گا اور حاضراتن حالت نصب میں ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا خبر ماں. ٹرانسلیشن پڑھیں. طالبات حاضر نہیں ہیں. اچھا اگر میں آپ سے کہوں اسی جملے پر مطالبات حاضرات پر باہر زائدہ داخل کریں تو کہاں کریں گی داخل. وہ خبر کے ساتھ آئے گا اور وہ خبر کو حالت جر میں لے جائے گا. چلیں کر لے جائیں پھر اس کو جلدی سے. مطالبات بحاضراتن. گڈ. اب آپ نے صحیح پکڑا کہ نصب اور جر میں آتی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے نا. تو جی ٹرانسلیشن جی کیسے کریں گے پھر اب. طالبات ہرگز حاضر نہیں ہیں. بالکل واقعی. ابھی بھی دیکھیے گا. ہاں چلیں نیکسٹ کریں. ہاں اولائی منافقون. ہوں. اب یہاں پہ ہاں اولائی خبر ہو جائے مبتدا ہو جائے گا اور منافقون خبر. اچھا چلیں یعنی ہاں اولائی ہے کیا ویسے انفارمیشن کے لیے بتائیں. کیسا اسم ہے. یہ بالکل ذہن سے نکل کے پڑا ہوا بالکل.
अच्छा, मैं बहुत मालूम। इसम ज़मीर है या इसम इशारा है? इसम इशारा, इसम हाँ जी, इसम इशारा, इशारा। ठीक है? जी, हाज़ा, जी। हाज़ानी, हाउलाई, हाँ, जी, जी, बिल्कुल। ठीक है? करीब का। जी। चलें अब ट्रांसलेशन करें। हाउलाई मुनाफिकून, वो सब मुनाफिक हैं। अच्छा, तो अभी मैंने आपको क्या बताया? और इसम करीब का इशारा, ये सब मुनाफिक हैं। हाँ, ये सब क्या है? ये मुनाफिक है, राइट। अब माँ जी। दाखिल करें। हाँ जी, माँ जब दाखिल करेंगे तो हाउलाई जो हो जाएगा माँ हाउलाई मुनाफिकीना। शाबाश। चलें ट्रांसलेशन कर दूँ। वो सॉरी, ये सब मुनाफिक नहीं हैं। ठीक हो गया। आगे कीजिए। अच्छा, ये 2 ही थे, चलें। अब बाज़ायदा भी लगा दीजिए जल्दी से, ये आगे एक स्लाइड में। हाँ जी। अल्फियातु कसीरतुन, हुँ। अल्फिया तो तो क्या है? अल्फियातु मुब्तदा। हजार होता है? जी, नहीं, 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 वो मियाँ अच्छा। वैसे हाँ, अल्फियातु मुब्तदा ग्रोह और को कहते हैं। कसीरतुन खबर। हाँ, गुरु ग्रोह बड़ा है, ठीक है? बड़ माँ जी। को एंटर किया मैंने, तो देखिए क्या बना पढ़े? मलफियातु कसीरतन, अब ट्रांसलेशन करें आप। गिरोह बड़ा नहीं है। ठीक है। अल्फिया तो इस्मुमा कसीरतन खबरुमा। खबर अब जी, बा हर्फ जर भी ले आए, चले जी। शुरू कर। तो ये हो जाएगा मलफियातु कसीरतन, बा ज्यादा कहाँ गया? सॉरी, हम्म, मलफियातु बिकसीरतन, हम्म, तीन। तीन, दा अब के साथ फिर तीन आएगी। हाँ, ठीक, ठीक है। अच्छा, जी। मल मलफियातु कसीरतिन, हम्म, बी कसीरतिन। बी कसीरतन रहा। आप जी। ट्रांसलेशन कैसे गिरोह करेंगी? हरगिज बड़ा नहीं है। गुरु हरगिज बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है। बिल्कुल, वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक। फौजिया सही जी, है कि नहीं? अच्छा जी, वेरी गुड नीलोफर, आपने आंसर दिया ठीक। आ जाइए नीलोफर आप ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या आप पहली बार पार्टिसिपेट कर रही हैं मुझे लगता है? नहीं, मैं आती हूँ लेकिन छुट्टियों में? टाइमिंग्स की वजह से मैं कम ले पाती हूँ। ठीक है। बाद में पढ़ अत्तुल्ला, लेती हूँ। ओके जी, ठीक। पढ़िए इस फुल सेंटेंस को। जी। अत्तुल्लाबु मुज्तहिदूना, हम्म, तालिब इल्म मेहनती नहीं है। हम्म, सॉरी, तालिब इल्म मेहनती है। तो शुक्र है। अत्तुल्लाबु आपने तो मुब्तदा। पहले ही बेचारों को मेहनती नहीं कह दिया है। अब इसमें माजा नाफिया लेकर आए पहले। मत्तुल्लाबु मुज्तहिदून मुज्तहिदी हम्म, मुज्तहिदीना। मत्तुल्लाबु मुज्तहिदीना। चले, माँ नाफिया हो गया, तुल्लाबु इस्मु माँ मुज्तहिदीना खबर। और ट्रांसलेशन करके मुज्तहिदीना। बताओ। जी। तो तालिब इल्म मेहनती नहीं है। हाँ, अब मेहनती नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताएं मुज्तहिदीना का इराब क्या है? अभी मंसूब है। अब बा ज़ायदा लगा दें आप। मत तुल्लाबु बिमुज्तहिदीना। हम्म, ठीक है। अब तो इसका ट्रांसलेशन करें। ट्रांसलेशन। जी। तालिब इल्म हरगिज भी मेहनती नहीं है। बिल्कुल। अब यहाँ पर मुज्तहिदीना का इराब क्या है? यहाँ पे मजरूर है क्योंकि रीजन क्या देंगे आप? बा हम्म, जी, बा से भी जो है हुर्फे जर है और ये मजरूर में ले जाता है किसी भी वेरी इसम को। गुड, वेरी गुड। चलें, ओके। आगे कौन है? बारकल्लाहु फीकी नीलोफर जी, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जी, जरीना जी आप आ जाइए। जी उस्ताज़ा। आप कर दी थी आप जरीना जी पहले? जी उस्ताज़ा, मैंने चलिए किया है। कीजिए, कोई बात नहीं, कीजिए। आपने भी मान आफिया और बाज़ायदा लगाना है। चले पढ़ें जी पहला उस्ताज़। यहाँ। अल औलादु क़ाइमून। ट्रांसलेशन क्या करेंगे? कायमुन खड़ा होना, ठीक है। खड़ा हो रहा है। हम्म, औलाद और औलाद लड़के, लड़के। खड़े हैं। जी उस्ताज़, लड़के खड़े हैं। हमारी वाली औलाद नहीं, लड़के खड़े हैं। अब इस पे मान जी। आफिया लगाइए। मल औलादु क़ाइमीना। मान लगाए ना।
مل مل بولی نا استاذہ، مل اولادو قائمین. مجھے سنائیں گے ماسٹر. چلے مل اولادو. اوکے تو اب ماں نافیہ ہو گیا، الاولاد اسم ماں اور قائمینہ خبر ماں. الاولاد نا ولدن کی جمع یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، ولدن لڑکا. اب ٹرانسلیشن کیسے کریں گے زرینا جی؟ زرینا جی کہاں گئی؟ میوٹ ہو گئے زرینا جی، مائک چیک کریں جی. ٹرانسلیشن کیجیے زرینا جی. جی استاذہ، لڑکے کھڑے نہیں ہیں. لڑکے کھڑے نہیں. اب با زائدہ لے ہیں بھئی، اب آپ اس کو جی خبر. استاذہ، مل اولادو بقائمین. چلیں اب کیا ہو گیا؟ مجھے ماں کے ساتھ جو قائمین آ رہا ہے اس کا اعراب بتائیں. جی استاذہ، یہ مجرور ہے. پہلے میں ماں کے ساتھ، جو سمپل ماں کے ساتھ نفی جی، ہے. یہ نصب میں ہے. گڈ. اور بقائمینہ میں قائمینہ کا اعراب کیا آئے گا؟ یہ مجرور ہوگا. مجرور ہو جائے گا. ٹرانسلیشن کیسے کریں گی اس کی؟ لڑکے ہرگز کھڑے نہیں ہیں. لڑکے ہرگز کھڑے نہیں ہیں. تو ماں جی استاذہ، سمپل نفی لائے گا، ماں اور با تاکیدی نفی لیں گے. بارک اللہ تاکید فیک. مجرور. اچھا جی، آ جائیے سمینا جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاذ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دیکھ رہی تھی سمینا کی نظر نہیں آ رہی. اب دیکھیے یہ پوائنٹ لکھیے گا، قرآن مجید میں ماں پلس با زائدہ اور ماں پلس اللہ کا استعمال زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے کیا، ایٹ لیسٹ دونوں کی ایک ایک ایگزامپل ضرور ڈھونڈ کے آپ نے مجھے یوٹیوب کے کمنٹ باکس میں بھیجنی ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں یا کسی چیز کو ڈھونڈ رہی ہیں تو آپ نے جو پڑھا ہے کہ آپ کو مل رہا ہے کہ نہیں، آپ اسے کیسے تلاش کریں گے. اور اب یہاں پر ہم قرآن مجید کے آیات ہیں، تو یہ ماں نافیہ ہے، ٹھیک ہے. جی تو اور اس میں آپ کو کوئی حرف نفی نظر آ رہا ہے سمینا جی؟ اللہ ان ہاذا اللہ ان ان اوکے. ٹھیک ہے. اللہ جو ہے ہمارا کیا ہے اصل میں؟ حرف استثناء ہے. تو ٹرانسلیشن دیکھیے، ماں ہاذا بشرن، یہ کوئی بشر نہیں ہے. ماں نافیہ کا اسم و خبر کسے بنائیں گی آپ سمینا جی؟ ماں نافیہ کا اسم ہاذا اینڈ خبر بشر. رائٹ. آگے ان کا اسم اور خبر کسے بنائیں گی؟ ہاذا ان کا اسم اور ملکن خبر ہوگا. ملکن کریم، پورا. ملکن کریم. ٹھیک. آگے دیکھیں، ماں ہن امہاتہم. اب یہ ماں نافیہ ہے، رائٹ. تو جی اب یہاں پر با حرف جر بھی نہیں مل رہا. میں نے آپ سے کہا ماں کے ساتھ آپ کو با بھی ملے گا، لیکن ضروری نہیں کہ ہر جگہ ملے گا. تو اس کی پہچان ہم کیسے کریں گے یہاں پہ سمینا جی؟ اس کی پہچان خبر جو ہے وہ نسب میں ہوگی. بالکل. اب آپ کو یہاں خبر نسب میں مل رہی ہے؟ جی. بالکل. امہاتی، امہاتن سے امہاتین سے امہاتی. امہاتہم مرکب اضافی ہے، وہ جی ان جی کی مائیں نہیں ہیں، رائٹ. آگے دیکھیے، جی. ماللہ بغافل. اب یہ ماں کون سا آ گیا پھر ہمارا؟ ماں نافیہ. اسم و خبر مانا بتا دیں مجھے. اللہ اسم ہے اور غافلین خبر ہے. با بغافل. کے ساتھ باقی با انسان کے ساتھ بغافلین. جی. با کون سا ہے؟ تاکیدی با زائدہ. با حرف زائدہ. ٹھیک ہے. جی با اللہ زائدہ بالکل، تو ہاں اللہ بالکل غافل نہیں ہے. آپ ٹرانسلیشن سے غور کرتی جائیں کہ کیسے ٹرانسلیشن ان کی آ رہی ہے. جی. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ماں نافیہ ہے، اسم اور خبر بتا دیں. اسم ہم ہے، خبر بمؤمنین. ٹھیک ہے. با کون سا آ جائے گا یہ خبر پر؟ با زائدہ. با زائدہ ہے. اور وہ بالکل مومن نہیں ہے.
वमा हुम बिखारिजीना मिनन नारी, मा नाफिया है। मुझे खबर बता दीजिए इसमें। हम बिखारिजीना, ये खबर है। ओके, हम इसम मा हो गया और बिखारिजीना खबरू मा, और मिनन खबर, नारी हमारी क्या हो जाएगी, मुतल्लिक खबर। ओके और जी। वो हरगिज नहीं निकलने वाले आग में से। एक और कीजिए, वमा साहिबुकुम बिमजनूनिन, मा मा ठीक। नाफिया, सब और खबर बताएं। बेमजनूनिन खबर है, साहिबकुम इस्म मा। हाँ, अब बेमजनूनिन पर हमारे पास बा जायदा आ रहा है, ऐसे ही है ना। जी और जी जी साहिबुकुम कौन सा जी उस्ताद। चल, साहिबुकुम कौन सा मुरक्कब बन रहा है समीना जी? मुरक्कब इजाफी। गुड। ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? और तुम्हारा साथी हरगिज दीवाना नहीं है, नहीं साहिबुकुम तुम्हारा साथी, ठीक है। जी। अब आगे देखिए, वमा हुआ बिकौली शाइरिन, माँ नाफिया है। अब मुझे बताएं, कौली शाइरिन कोई मुरक्कब बन रहा है? कौली शाइरिन मुरक्कब इजाफी है। राइट। चले, माँ का हुआ इसम। मुब्तदा, इस्म मुब्तदा, हम्म, माँ के साथ सॉरी, हुआ 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 मुब्तदा नहीं, एंड मैं आपसे कह रही हूँ माँ आ जाएगा तो मुब्तदा खत्म हो जाएगा, फिर क्या आएगा? इस्म इस्म मा, ठीक है। इस्म मा और बिकौलिन शायरी, बिकौली शायरिन खबर मा। बिकौली शायरी, राइट। ये हरगिज किसी शायर का कलाम नहीं है। नहीं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन। अब यहाँ मुझे बताइए कि माँ और इल्ला आ गया है, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? आ, पॉजिटिव आ, नफी आएगी, ठीक है। माँ और इल्ला। हाँ, रसूल के सिवा ऐसा कुछ। ठीक है। तो जी मोहम्मदुन यहाँ हो जाएगा मुब्तदा और रसूलुन खबर हो जाएगा। नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर रसूल ही। जी जी। चले आगे देखते हैं, और कौन है हमारे साथ। पार्टिसिपेट कीजिए प्लीज। चले कीजिए, समीना जी। मा अमरुना इल्ला मिन इंदिल्लाही, माँ आ, नाफिया आ गया। अमरुना ये क्या है? अमरुना इस्मुमा और खबर क्या आ जाएगी? इंदिल्लाही खबर मा होगी। हाँ, अब देखिए जब इल्ला आ जाएगा ना, तो फिर जी माँ का जो वो मुब्तदा को इस्मु माँ और खबरू माँ बनाने वाला इफेक्ट है ना, वो खत्म हो जाएगा। तो फिर अब ये जी जी। अमरुना मुब्तदा और मिन इंदिल्लाही खबर, ठीक है। ओके, अमरुना मुब्तदा रहे हो जाएगा वापस, और मिन इंदिल्लाही खबर हो जाएगी। खबर नहीं होता है मदद मगर अल्लाह ही के पास से। वमा कैदू फिरऔना इल्ला फी तबाबिन, माम आपका माना क्या है, ठीक है। जी। अब कैदू फिरऔना ये क्या है? ये मुरक्कब इजाफी है। हाँ जी, वेरी गुड। और हमारा ये क्या बन जाएगा यहाँ पर? मुब्तदा बनेगा, इल्ला हरफ इस्तिस्ना आ गया, और फी तबाबिन क्या हो जाएगा? खबर होगी। तबाही, राइट, माशाल्लाह। फिरौन की खुफिया तदबीरें तबाही के सिवा कुछ नहीं है। अब आप देखिए, कैदु फिरौना, फिरौन की खुफिया तदबीरें, ट्रांसलेशन में देखें मुरक्कब इजाफी जी ताकीद की मुरक्कब। इस्तेमाल आ गया। चले, बारकल्लाहु फीकी समीना जी। आज ये भैया की जज़ाकल्लाह। भाई, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फज़िक्र फमा अंत बिनिअमति रब्बिका बिकाहनिन। अच्छा, अब यहाँ मुझे बताएं, ये माँ नाफिया आ गया, ठीक। जी अंता क्या जी बनेगा? मैम, अंता जो है वो इस्मुमा। ठीक है, ओके। अब इसकी खबर मैम बन। जी, बिन बिनेमती इसकी खबर होगी, खबरू माँ होगा, और बा जो लगा है वो बाजायदा होगा। अच्छा, अब आपको यहाँ पर दो माँ नजर आ रहे हैं,
ایسے ہی ہے نا؟ جی تو اب کیا کریں گے ہم، بتائیے؟ دیکھیں، میم ہاں بتائیں، کچھ آئیڈیا ہے؟ ہم جب وہی آپ دیکھ کو رہے جملے میں دو با حرف جر نظر آئے ماں کے بعد، ٹھیک ہے، جی تو آپ کا جی جو با زائدہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جی آخر میں آ جائے گا، ٹھیک ہے یہ۔ اب آپ بتائیں، اب یہ کیا بنے گا؟ بی کا ہنن جو ہے وہ بازائدہ ہو جائے گا. ہاں، تو یہ اب کیا بنے گا ماں کے لیے؟ بکاہنین، ماں کے لیے خبرو ماں. شاباش، ٹھیک ہے۔ جب جی آپ کو جملے میں حرف نفی ماں کے بعد دو بار مل جائیں گے، تو جو با زائدہ ہے نا وہ آخر میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب بھی نعمتی، یہاں پہ بھی نعمتی ربکا، اچھا اس با کو اگر آپ سکپ کریں تو نعمتی ربکا کون سا مرکب بن رہا ہے صوبیہ؟ مرکب اضافی. ایگزیکٹلی، پیچیدہ مرکب اضافی، ٹھیک ہے۔ اب نعمتی مجرور ہے، پیچھے باہر پہ جا رہا ہے، تو اب اگر ہم جی اس کو سمپل انالیسس کرتے ہیں تو ہمارا ما نافیہ، انتا اسم ما، ٹھیک ہے، بکاہنن جی ما، اور بنعمتی ربی کا متعلق خبر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کر لے کے. ٹھیک متعلق ہے میم. خبر ما ہو جائے گا۔ ٹرانسلیشن ہم کیسے کریں گے؟ سو آپ نصیحت کریں، پس آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے ہرگز کاہل نہیں ہو۔ اگر جملہ اسمیہ میں دو با مل رہے ہوں تو ما نافیہ کی خبر آخر میں آئے گی، اور پہلا با ہوگا وہ حرف جر ہوگا، ٹھیک ہے، پہلا با حرف جر ہوگا، ٹھیک ہے۔ جی یہ ہے جی جی پوائنٹ تھا جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، ان کیا ہے؟ ان نافیہ ہے صوبیہ، ٹھیک ہے۔ جی 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 کہا جی ان ان اور اللہ کا کمبینیشن آپ کو ملے گا قرآن مجید میں زیادہ، ٹھیک ہے۔ اب حسابہم کیا ہو جائے گا؟ مرفوع ہے، تو یہ ہو جائے گا آپ کا میم ان اسمو اننا ہو جائے گا. اسمو ان. اسم ان، شاباش، انا نہیں کہنا آپ نے، اور وہ اللہ میم غلطی. اتنا آ گیا جی، مجھے پتا ہے، ابھی ہم نے کل کی ہے پرسوں تو اس لیے وہ ذہن میں ہے۔ تو جی جی اللہ ربی اس کی خبر ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے کہا اللہ ان کے اسم اور خبر کے بیچ میں آ جائے گا، ایسے ہی کہا تھا نا میں نے آپ سے۔ جی جی تو ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ ان کا حساب نہیں ہے مگر میرے رب کے ذمے ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اب یہ ان نافیہ ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی خبر کون سی ہے؟ اسم اور خبر بتائیں گے؟ میم منکم جو ہے وہ اسمو ان ہے، اور واردوہا جو ہے وہ اس کی ایک خبر ہو جائے گی. نہیں، رکیں، من کیا ہے؟ من کیا ہوتا ہے؟ حرف جر، جی حرف جر، اچھا میم یہ ہوں، جی جی میم جا رہا ہے جی میم. من. اب دیکھیں، جب بھی ہوں کوئی چیز اپنی جگہ سے آپ کو ڈسپلیسڈ ملے، اپنی پراپر جگہ پر نہیں ملے، تو اس کا مطلب ہے وہاں حسر آئے گا۔ اب یہ خبر ہے، منکم حرف جار اور مجرور ہوں ضمیر، ٹھیک ہے، تو جی اس کی جی جگہ کہاں آتی ہے؟ مبتدا کے بعد، لیکن یہاں یہ پہلے آ رہی ہے، واردھا مرکب اضافی مبتدا جی مؤخر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب کوئی چیز جب اپنی پوزیشن سے ڈسپلیسڈ ملے تو وہاں حسر بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی میم. منکم خبرو ان اور واردھا اسم ان، اسمو ان. ٹھیک میم. اسم، میم تو اس میں مطلب جیسے ہم مبتدا مؤخر کر دیتے ہیں ہوں، اور وہ کر دیتے ہیں، تو میم اس میں کچھ اس طرح کا نہیں بولیں گے کہ خبر اگر پہلے آ گئی ہے تو؟ ہاں جی، کیوں نہیں، دیکھیں اب آپ اس طرح کہہ لیں کہ ہمارا جو ہوں اصل میں، دیکھیں وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ منکم پہلے آ گیا، تو ہم نے اس کو آپ یوں کہہ لیں اسم ان خبر مقدم، اور واردھا سوری، منکم جو ہے خبرو ان خبر مقدم، اور واردھا جی اسم ان مبتدا مؤخر ہے۔ مؤخر. مبتدا مؤخر ٹھیک. نہیں، اب مبتدا تو ہم نے کہنا ہی نہیں نا۔ جی جی مؤخر بن جائیں گے جی. اب یہاں پر آپ صرف
किस तरह इसको आप कह लें, चले आपने इसको अगर इसमो इन और खबरू इन को करना चाह रही हैं तो मिनकुम खबरू इन मुकद्दम और वारिदुहा इस्मु इन मुअख्खर, ऐसे कर लें। पर ठीक ठीक है। ठीक, हाँ मैं बस इसलिए पूछ रही थी कि होता है ना कि जब खबर पहले आ जाती है तो ठीक हम है। उसे हाँ लेकिन हाँ उसके मुकद्दम बाद ऐसे मेंशन उसको करना मैसेज चाहती है कर करिए देते हैं। उसको, लेकिन वो क्योंकि हमें जी जी नजर आ रहा है तो हाँ वो बात अंडरस्टूड है। ट्रांसलेशन देखें कितनी उसमें फिर स्ट्रेस आ जाता है ना, तुम में से जी कोई नहीं है मगर इस फर्ज से गुजरने वाला। अच्छा। जी मैम। इन हाजा इल्ला कौलुल बशरी, इन नाफिया आ गया और पहचान आगे देखें इल्ला आ गई। ठीक है। जी जी अब हाजा क्या हो जाएगा? मैम, हाजा इसमु इन हो जाएगा। हम्म। और कौलुल बशरी? बिल बशरी जो है वो खबर इन हो जाएगा। हाँ हाजा क्या होता है सोबिया? मैम हाजा इशारा है। गुड। करीब दूर का कौन सा? मैम ये करीब का। गुड। नहीं है ये मगर इंसान का कलाम। चलो। वक़ालू इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया वमा नहनु बि मबऊसीना। अब यहाँ देखिए आपको दो मिल रहे हैं, है ना? एक आपको इन नाफिया मिल रहा है, दूसरा आपको माँ नाफिया भी आगे मिल रहा है हरफ तकवा के मैम बाद। इल्ला भी तो होता है। हाँ इल्ला इनके साथ आगे ना, मैं हरफ नफी अभी सिर्फ काउंट कर रही थी। अब इनके जी जी साथ आपको ठीक। इल्ला का कॉम्बिनेशन इधर मिल गया। हिया क्या हो गया? जी ये हो गया इसमु इन। हाँ। हयातुन दुनिया ये क्या हो गया? मैम ये हो गया खबरू है। खबरू इन। हाँ और ये जी मुरक्कब इजाफी बन रहा है इसको, ठीक है। जी मैम कब इजाफी जी। यानी हमारी दुनियावी जिंदगी ना, हयातु मुजाफ ना जो है ना ये मुजाफ इलैह है, ठीक है। ठीक है। और फिर मुजाफ बन रही है अब दुनिया के लिए, और दुनिया मुजाफ इलैह आगे पेचीदा मुरक्कब इजाफी आपका, ठीक। जी वमा जी नहनु भी मबऊसीना, माँ नाफिया और पहचान क्या बता रही है आगे खबर पर जो बा जायदा आ रहा है, ठीक है। जी जी। हाँ और और वो जो हाँ और जो हम मैं हरगिज नहीं उठाए जाने वाले। ट्रांसलेशन पे भी साथ साथ गौर कीजिए कि कितनी खूबसूरती जो से। मैम वो भी दिख रही हूँ। जी मैम। मैम हरगिज लगी है ना बाज़ायदा की वजह से, और हम हरगिज नहीं उठाए बिल्कुल। जाने वाले। बिल्कुल और वहां इन और इल्ला के साथ देखिए नहीं है ये मगर, ठीक है, नहीं जी है मैम। मगर। इल्ला की ट्रांसलेशन जी कैसे करेंगे? तो यहाँ आपको देखिए इन और इल्ला का कॉम्बिनेशन मिला है। चले जी म्यूट कर लीजिए सोबिया जी। ईमान नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके साथ करेंगे प्रैक्टिस। मैं इसको लेक्चर को वाइंड अप करती हूँ। माँ की अकसाम, इस चार्ट को बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि माँ की हमने कौन कौन सी अकसाम अब तक पढ़ ली है। माँ इस्तिफाम, माँ मौसूला, माँ काफा और माँ नाफिया आज हमने पढ़ा है। माँ इस्तिफाम क्या है? जिससे हम सवाल करते हैं। और रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे डरा दिया आपने जैसे। मसमुका, माँ, माँ इस्तफामिया है, ठीक है, इसम इस्तफाम है। तुम्हारा क्या नाम है? माँ मौसूला, माँ जब आता है तो इसके बाद माँ मौसूला के बाद आपको एक सिला भी मिलता है, ठीक। लिल्लाहि माँ फिस समावाति वल अर्दी, माँ मौसूला है, फिस समावाति वल अर्दी ये इसका सिलातुल मौसूल है। शिबू, अल्लाह ही के लिए है जो कुछ जमीन और आसमान में। माँ काफा ये इन्ना के साथ आता है, ठीक है। इन्नमल आमालु बिन्नियाती, यकीनन तमाम अमाल सिर्फ नियतों के साथ हैं। और आज आपने मानाफिया स्टडी किया। अस्मा का एराब, ये एक चार्ट और बनाइएगा। अस्मा का एराब यानी कोई भी इसम रफा नसब और जर में जब आपको मिलेगा तो क्या से होगा। हमने अब तक जितने स्टडी की है जुमला इस्मिया में, तो उसमें कौन कौन से अस्मा हमें मरफू मिले थे? मुब्तदा, उसका एराब मरफू होता है, खबर मरफू होती है, फिर या हरफ निदा के बाद मुफरद इसम मरफू मिलता है आपको, खबरू इन्ना मरफू होती है, और
ابھی جب ہم نے ماں پڑھا تو اس میں اسم ماں مرفوع تھا. حالت نصب میں کون کون سے اسماء ہیں جو گرامر میں ہمیں منصوب ملیں گے اور جو ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں؟ ابھی تک ہم نے پڑھا یا حرف ندا کے بعد جو مضاف ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور اسم انا منصوب ہوتا ہے. اور آج کا ریسنٹ پوائنٹ کہ خبر ما منصوب ہوتی ہے. حالت جر میں کون کون سے اسماء ہوتے ہیں عربی گرامر میں؟ حرف جر کے بعد آنے والا اسم اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. یہ چارٹ بنا لیجیے گا. مزید اگر اس میں جو چیز انٹر ہوتی جائے گی ہم اسی چارٹ کے اندر انٹر کرتے جائیں گے. آج کی کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے سیکھنا آسان بنائے اور میرے لیے سکھانا آسان بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرح عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.